Hello students, welcome back once again to Online Shine App, Professor Rahul Mukherjee's Managerial Economics session. I hope so you all are understanding the videos that I have already shared through Online Shine App on Module 1 as well as on Module 2, Chapter 1 and 2 already done. Demand for money, supply of money and inflation. So this is the third chapter and the last chapter in your module, that is Unit 2 of Managerial Economics friends, which is on monetary policy. Okay? So जैसा हम लोगों ने डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा, तभी मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया था व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑल अबाउट रफली. Then we spoke about inflation and finally giving a finishing touch to this particular module, which is monetary policy. When I talk about monetary policy of any economy, let's talk about that first because we are not just studying this particular subject from Indian economy point of view. मैं examples देता हूँ इंडिया का because हम सब इंडियंस हैं और यहाँ रहते हैं. But हमें वर्ल्ड इकोनॉमी हर एक कंट्री के हिसाब से सोचना है, एक कंट्री कैसे काम करता है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट अ कंट्री, द सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री में बैंकर टू द बैंक इज सेंट्रल बैंक एंड the head of this particular central bank all over the world is the World Bank. Okay, now when I talk about central bank of any economy, it mainly looks after the money circulation in the economy. The interest rates जो बैंक के थ्रू हम सब सेंट्रल बैंक तक नहीं जाते हैं या नहीं पहुंच सकते. Therefore, banks have been created who can cater to the requirements of the general public or the account holders. So सेंट्रल बैंक का ये काम होता है कि इंटरेस्ट रेट फिक्स करके एक अमाउंट दे दे, एक परसेंटेज क्रिएट करना और उसके आसपास का एक रिलैक्सेशन लिमिट दे देना. बैंक्स उसके हिसाब से ही अपना परसेंटेज इंटरेस्ट रेट्स रखेंगे और पब्लिक को लोन्स ऑफर करेंगे या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे. दिस इज द मेन वर्क ऑफ central bank, what they do, and finally they also have a control or regulation over the banks of that country. Now coming to India, so RBI, Reserve Bank of India, is the central bank of our country which looks after the monetary policy along with the finance minister and other top ministers of our country. When it comes to our monetary policy friends, I will always speak about the instruments of monetary policy, but before that let me tell you this monetary policy, that is repo rate, reverse repo, CRR, SLR, जब तक हम instruments पे आ जाते हैं, there are certain objectives why monetary policy is being handled और इसके जरिए, इसके थ्रू क्यों मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है. So those are already shared here, certain objectives and effects of monetary policy. Effects की अगर बात करें तो contractionary होता है और expansionary होता है. Contractionary means मनी सप्लाई को लिमिट में रखना है, कम करना, तो तब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं so that लोगों की लोन लेने की क्षमता, कैपेसिटी कम हो जाए. और जब एक्सपांड करना होता है मनी सप्लाई को तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है सो दैट ईच एंड एवरी वन, अ कॉमन पब्लिक, जाके सस्ते दाम में, सस्ते इंटरेस्ट रेट में लोन उठा पाए और उसका ब्याज भर पाए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टाइम टू टाइम, जिसको हम EMI कहते हैं. एनीवेज, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये इफेक्ट्स थे. टॉकिंग अबाउट द पर्पस, सो मेनली द पर्पस इज ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना, द मेन ऑब्जेक्टिव इज to create a balance in the society, equilibrium लाना, give and take में, demand and supply में, ये सब चीजों के लिए monetary supply चलाया जाता है या implement होता है. Talking about the instruments as one of the most important answer of this particular chapter for you students, that is, it is divided into two parts, quantitative and qualitative. Quantitative talks about percentages कि repo rate कितना, मैंने यहाँ पे शेयर किया. आजकल repo rate की लोन रेट काफी कम हो गया, बट रिवर्स रेपो तो 3-3.5% पे आ गया है. सेविंग्स अकाउंट के रेट पे आ गया FD रेट्स. ओके, सो दिस इज द थिंग. जब जैसा जैसा हमारा कंट्री डेवलप होता जाएगा, डेवलप होते जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा. आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल ले लो, दे हैव 0% इंटरेस्ट रेट, या तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए पैसा देना पड़ता है लोगों को. सो दिस इज द सिनेरियो. सो क्योंकि मार्केट्स अच्छे चलने लगते हैं तो बैठे बिठाए पैसा नहीं मिलेगा फ्यूचर में. Therefore, if you want to get a personal suggestion, get into such things कि फ्यूचर में आपको लाभ मिले. आज ही कोई जगह पे बैंक्स में या रेप्यूटेड बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स में इन्वेस्ट कीजिए या रेप्यूटेड कंपनीज में, जहाँ पे आप 10-20 साल या 30 साल के लिए फिक्स्ड अमाउंट आपको आता रहे. इन्वेस्टिंग अमाउंट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगा. टॉकिंग अबाउट रिवर्स रेपो इज द डिपॉजिट रेट कि हमें कितना रिटर्न मिलता है. CRR is the next point in instruments, as you can see in my PPT and slides. CRR talks about cash reserve ratio कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर हर एक बैंक को RBI, दैट इज सेंट्रल बैंक के पास एक अमाउंट रखना पड़ता है. वो अराउंड 3 to 4% पे फ्लक्चुएट होता है.
जब रातों रात अगर कोई बैंक बंद हो गई, बैंकरप्सी हो गया, तो वो पैसों से बोरोवर्स का पैसा या ड्यूज चुकाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मार्केट में मनी फ्लो, मनी सप्लाई कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई ये रेट को बढ़ा देती है। तो बैंक्स को ज्यादा पैसा रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ऑटोमेटिकली लोगों को कम पैसा मिलता है टू टेक लोन, या वो लोन रेट महंगे हो जाते हैं। एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व कि एवरी बैंक हैज टू इन्वेस्ट अराउंड 23 to 27% ऑफ देयर बिजनेस अमाउंट इनटू गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। इससे भी आरबीआई मनी कंट्रोल रखता है और जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है उसके तरफ पैसों को इन्वेस्ट कराने में मदद लेती है आरबीआई। ओके, तो जब मार्केट में मनी सप्लाई या इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल में लाना होता है, ये रेट बढ़ा दिया जाता है। बैंक से पैसा पुल आउट करके कुछ एसेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करवाई जाते हैं। एंड जब गवर्नमेंट या आरबीआई फील्स या सेंट्रल बैंक फील्स दैट इट कैन, मार्केट में मनी सप्लाई कम है या डिमांड कम है या ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन, जॉब्स नहीं है, तो इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ एसएलआर, सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो, so that the money supply increases in the economy. So this was about the quantitative instruments. Qualitative instruments आप देखोगे तो काफी थियोरेटिकल है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर मेरे पास 1 करोड़ का एक घर है और मुझे दूसरा घर लेना है, ये घर को मॉर्गेज रख के, तो इफ आरबीआई और सेंट्रल बैंक इज ऑफ द व्यू कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत हो गया, कम देना, तो वो मुझे 1 करोड़ के सामने 50-60% ही लोन देंगे, दैट इज 60 lakhs एक्सेट्रा। और अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है तो मुझे 80% मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा। सो दैट इज गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी सम मोर पॉइंट्स हियर कि क्रेडिट कंट्रोल में रेगुलेशन लाना नहीं लाना, ये डिपेंड करता है मनी सप्लाई ज्यादा है या कम है। देन मॉरल ग्राउंड्स पे बैंक्स को सर्कुलर्स भेजना, नोटिस देना कि लोन पे थोड़ा कंट्रोल रखो, कुछ बड़े व्यापारियों को इतना लोन मत दे दो विदाउट एनी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या बिजनेस, कि वो लोन ना रिपे करके भाग जाए दूसरे कंट्री में। ऑलरेडी हमारे कंट्री में एनपीएस बहुत ज्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक, कि कुछ बोरोवर्स या कुछ लोग लोन लेते हैं बट पैसा नहीं भरते, डिफॉल्ट करके भाग जाते हैं या पैसा ही नहीं भरते, तो बैंक्स लॉस में जाती है। फाइनली जो बाकी होल्डर्स है उनका पैसा या तो इफेक्ट हो जाता है या बैंक रातों रात बंद हो सकती है, ये सब इश्यूज है। तो आरबीआई हैज टू कीप कंट्रोल ओवर ऑल दिस फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द बैंक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, if banks are not abiding by the rules or following the rules of central bank, so direct action will be finally taken. This was about the instruments of monetary policy, quantitative and qualitative. So main instruments यही है। और फाइनली इसके बाद हम आ जाते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट हाउ टू मैनेज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड्स। मॉनेटरी मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए कंट्री का। सो वन इज डीमोनेटाइजेशन वाज वन ऑफ द मेजर्स, जिससे ब्लैक मनी को कंट्रोल में लाया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, if government wants to have proper control over money supply, it has to have proper records. Unorganized sector, money market, जो मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में भी शेयर किया था कि काफी लोग मंथली पैसा जमा करते हैं और हर मंथ किसी का नाम निकलता है और उनको पूरा पैसा दिया जाता है। सो ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी नोटेड एंड कम अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन। ऑल्सो देर आर सम पीपल जो टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स इवेशन, इस पे भी कंट्रोल लाया जाना चाहिए, तो ही हमारा मॉनिटरी पॉलिसीज या इवैल्यूएशन जो होगा, मनी सप्लाई का इवैल्यूएशन जो लास्ट स्लाइड है, वो कंट्रोल में आएगा। So that's it from my end in this particular video as well. Crisp short video with full of knowledge and information for you special students like always. So that's the end of module 2 chapter 3 and unit 2 का यही end है. Very soon I will meet you with the next module which will mainly talk about the fiscal policy of the government, public debt and such related topics of your syllabus managerial economics for you students. Till then stay tuned to Online Shine app. As I always say, this is a quite educative app that you have downloaded and you all are watching this particular video. Okay, also subscribe to other subjects which will benefit you to make the concepts fit and confirm in your mind while attempting your exams, whether it is written exam, MCQ exam, online exam, offline exam, anything. This is going to help you to remember things very well and refer to it whenever you require again and again. ठीक है, so stay tuned to this particular app that is Online Shine app and Professor Rahul Mukherjee's lecture of managerial economics. Take care of yourself and see you all in the next video in module 3, that is unit 3 and chapter 1 in the next video. Take care of yourself and study well. Refer the MCQs, go through the PPTs once again and watch the video. Bye bye.